Okay, good morning, class. Today's topic is Rankine's active earth pressure theory. It is at rest condition. So today we are going to learn about Rankine active lateral earth pressure at rest, PA. So this theory is based upon mainly only one assumption, that friction between the soil and the wall is neglected. Okay, so when we say that there is no friction between the wall and the soil, then shear forces developed on that particular wall is zero. So we say that no shear forces are developed on the soil particles, because shear forces only develop when there is a friction. We cannot say that there is no friction, but we are neglecting the friction between the soil and the wall. So, as previously introduced, the soil in the case pushes the wall far away. The transformation factor of the vertical pressure of horizontal pressure in this case is Ka, and the lateral earth force is termed as Pa. Here you can see there is this figure. If this figure is visible to you, then you can see that this is a wall. Okay, this is a wall, and on this wall there is this Pa force which is acting H by 3 from base. Alright, when this is acting at H by 3 from base, what will it do? It will try to push the wall. This Pa force will try to push the wall from this backfill, from this soil. Soil is known as backfill. So from this soil, the wall will try to push the wall in rightward direction. So there will develop a delta. What is this delta? The wall will try to move in a forward direction, and from its original position, this is your original position. If you say that this is point A, then from this A point it is moving to this point B. Okay, so very clearly it is said. Now if we say that this dotted line is A and this dotted line is B, then you can say that from A position it is moving to B position, so this distance from A to B is delta H. So that means the wall has pushed from its original A position to the B position. So therefore, what is active earth pressure? The active earth pressure is that the wall pushes away from the soil. So when this is the condition, what happens actually is has to be calculated. So what is Ka? K is the coefficient and A is for active earth pressure, and earth force Pa, where P is the force and A is the active earth pressure. So how can you calculate Ka? So K is calculated by 10 square 45 minus 5 by 2, and this Ka is also calculated by 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi. When we will solve the numerical, then we will be able to know other things also. Now this is one example here, if you can see. So active earth pressure occurs when wall tilts away from the soil. In this position, if you can see, you can see that there is a wall. So this is your wall, and soil is from this soil, and some little bit soil is here in the groundward side.
So what will happen here? This soil will try to push this wall here, this side, away from the backfill. This is your backfill. This is your backfill. So what will happen from this backfill? This soil will try to push the wall in this direction. So this is known as your away from the soil. So the active earth pressure occurs when the soil tilts away from the soil. For example, a typical free standing retaining wall is given to you. So here this soil will try to push this wall away from the backfill, away from the soil, which is known as your active earth pressure. Here your K is minimum. Now there are some cases also. So first case, in case of granular soil, so that is pure sand. When you are having pure sand, there is no cohesion in that. So what will happen in this? So when you are having a pure sand, this is your diagram. So here if you can see, this is your wall of height h, this is your Q, that is a surcharge loading, and here you are given gamma of the soil and phi frictional angle is given to you. So you need to calculate the PA. So PA can be calculated by P1 plus P2. But how you have obtained this P1 and P2, that you should know. So for that, what we have to do is, here, this is your wall and this is your retaining wall having a surcharge loading. Okay, so this is your Q given here and this is your H and this is your gamma and this is your phi. Okay, so this is given to you. So what will happen here? So since you are given all these facilities, what happens whenever you are doing certain numerical, you have to draw a diagram first. So what will happen? Draw the first diagram. You draw first the retaining wall, then just show the wall line, then you draw the surcharge loading. Here is your surcharge loading QU. Okay, so here your surcharge loading QU, this is your H, here there is gamma, and here you have phi. Okay, so you are having this. So extend these lines. You have to draw the diagram. First, we will draw the diagram for Q. So what will happen? You have to draw the diagram for Q. How you will draw the diagram for Q? So for drawing the diagram for Q, you need, this is how you have to take care. So when you are going to draw the diagram, then diagram, for this diagram, you need to learn the CGMI. Okay, so what is this CGMI? You have already known that CGMI can be calculated or CGMI can be done with the help of CGMI lesson. So for this, now here we are having two loadings. First is your Q and another is your gamma. यानी आपके पास सॉइल है और आपके पास सरचार्ज लोडिंग है. तो सबसे पहले हम सरचार्ज लोडिंग का डायग्राम बनाएंगे. सरचार्ज लोड जो है वो पूरा का पूरा एच हाइट तक है, इसलिए हम उसका रेक्टेंगल एंगल बनाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका सरचार्ज एंगल का डायग्राम. ठीक है, तो इसका जो आपका KA इंटू Q इसका जो रहेगा वो आपकी इंटेंसिटी रहेंगी.
और ये KA इंटू क्यू जो आपकी इंटेंसिटी है, ये आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायग्राम। अब ये आपका किसका डायग्राम बन गया? ये आपका डायग्राम बन गया है KA इंटू क्यू के लिए, सरचार्ज लोडिंग के लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसे प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि हमने सिर्फ सरचार्ज का लोडिंग बनाया, यानी कि ये डायग्राम हमारा बन गया। अभी हमको कौन सा डायग्राम बनाना है? आपको सॉइल का डायग्राम बनाना है। तो सॉइल के लिए भी आप पूरी लाइन बनाएंगे। तो सॉइल का लोडिंग ये पॉइंट पे तो 0 है, लेकिन बढ़ते 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 ये जो है यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो डायग्राम जो है, ये इंटेंसिटी जो है ये इंक्रीज होते होते ये नीचे के लाइन पे H जहाँ पे आ जाता है हमारा ग्राउंड लेवल तक, तो ये इतना बड़ा आपका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका सरचार्ज लोडिंग क्या है? 0 है, लेकिन यहाँ पे आपका सरचार्ज लोडिंग कुछ ना कुछ रहेगा, तो वो रहेगा आपका KA गैमा इंटू H, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटेंसिटी सॉइल के लिए। अब आपको क्या करना है? आपको इसका एक सिंगल डायग्राम बनाना है। तो सिंगल डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जब आप सिंगल डायग्राम बनाएंगे तभी आपका जो जब आप सिंगल डायग्राम बनाएंगे तभी आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंगल डायग्राम बनाने के लिए व्हाट विल हैपन, इसे आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल डायग्राम कैसे बनेगा आपका? यहाँ पे आपका ये KA का डायग्राम बनेगा, ठीक है। KA इंटू क्यू, ये KA इंटू क्यू, और ये सॉइल का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा एक पर्टिकुलर डायग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2। तो आपके पास अभी कितने डायग्राम बन गए? 1 and 2। अब ये 1 and 2 डायग्राम को आपको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? तो ये 1 and 2 को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले सारी चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि आपका जो ये डायग्राम है, ये 1 और ये 2 डायग्राम बन गया। दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2। तो ये आपका पहला P1 है, ठीक है, और ये जो है आपका P2 है। तो P1 जो है वो कहाँ एक्ट कर रहा है आपका? ये P1 आपका H/2 पे एक्ट कर रहा है, और ये P2 जो है वो आपका H/3 पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो P1 जो है उसका आपका जो बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका एरिया, और P2 का हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो PA क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, और ये कैलकुलेट करने के बाद में आप Z बार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और Z बार इज द सेंट्रोइड एट द डायग्राम। So this is how you need to calculate the value of PA and Z. Now what happens? What is the next condition? Let us see. Now here, from here, अब इसमें आप देखेंगे कि let me share it. It is not properly sharing. I think there is certain problem in sharing. Okay. So here you can see that we have already shared this diagram.
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये डायग्राम जो है आपका, this is from this diagram what will happen, ये जो आपका डायग्राम है इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये हमारा जो डायग्राम है, यहाँ पे ये पूरा सिचुएशन है। दिस इज योर क्यू गैमा फाई, जिससे आपका ये पहला डायग्राम बन गया के ए इंटू क्यू, फिर आपका ये दूसरा डायग्राम बन गया सॉइल का, और फिर आपका ये कंबाइंड डायग्राम बन गया। अब ये पूरा कंबाइंड डायग्राम बनने के बाद में आपने क्या कैलकुलेट किया, पी ए इक्वल्स टू P1 प्लस P2। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है पी ए। अब दूसरी जो कंडीशन है हमारे यहाँ पे, दैट इज इफ द सॉइल इज C5 सॉइल। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सॉइल में अगर कोहेजन नहीं है तो ऊपर में आपका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि ये पार्ट जो होता है यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है, लेकिन अगर सी आ जाता है, कोहेजन है, तो ऊपर में भी प्रेशर आ जाता है। तो लेट अस सी व्हाट इज रिटन। The clay exerts a lateral earth pressure with value of 2C under root K in general. In case of active earth pressure, the value of K is Ka, and when the wall moves away from the soil particles will get disturbed and the cohesion of the soil will decrease. So in case of active earth pressure, we subtract the lateral earth pressure of clay because the cohesion of the clay is decreased. अब इसका मतलब क्या होता है, C2C अंडर रूट के, 2C अंडर रूट के मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होता है दैट इज ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अर्थ प्रेशर जो है वो K का Ka में बदल जाएगा बिकॉज इट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर। When what will happen, when wall will try to move the soil away, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो ये वॉल यहाँ कहीं तो भी मूव होगी, तो यहाँ की जो सॉइल है व्हाट विल हैपन, दिस सॉइल विल गेट डिस्टर्ब। तो ये सॉइल कैसे डिस्टर्ब होगी, जब उसके सॉइल पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, कोहेजन है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब वो डिक्रीज हो जाता है तो व्हाट विल हैव, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट कोहेजन फ्रॉम द टॉप अप टू बॉटम, ठीक है। so this is what is the theory in this condition. so what will happen here, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास गैमा भी है, यहाँ पे आपके पास सी भी है, और यहाँ पे आपके पास फाई भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सबसे पहला डायग्राम अगर आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे सरचार्ज लोडिंग नहीं है, क्यू यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्यू का लोडिंग कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्यू का लोडिंग जब हम कंसिडर नहीं करते तो क्या बचता है हमारे पास, ये गैमा बच जाता है, ठीक है। तो गैमा मतलब व्हाट हैपेंस, गैमा मतलब क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। सी मतलब क्या होता है, कोहेजन ऑफ क्लेई सॉइल। और फाई का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनल एंगल और रेजिस्टेंस एंगल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये आया कैसे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्लियर इस तरीके से करते हैं सारी चीजों को। अभी यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए जैसे कुछ भी हो नहीं रहा है यहाँ पे, इट इज नॉट क्लियरिंग एक्चुअली। क्लियर का बटन में क्या है, क्लियर का बटन क्लियर, ओके। तो क्लियर ऑल ड्राइंग यहाँ पे आ चुकी है, तो हम लोग अभी यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो आई विल ट्राई टू ड्रॉ। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अभी हमारे पास जो है यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है ये हमारे पास वॉल है,
और ये वॉल में हमारे पास गैमा भी है, हमारे पास सी भी है और हमारे पास फाई भी है। तो ये तीनों के डायग्राम बनेंगे। सी और फाई है तो हमारे डायग्राम अलग तरीके से बनेंगे। तो ये दो लाइंस को जो है हम लोग इसे जोड़ देते हैं। तो पहला हम लोग डायग्राम किसका बनाएंगे, हम लोग गैमा का डायग्राम बनाएंगे। गैमा क्या है, गैमा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो ये लाइन बन गई आपकी हाइट की, ठीक है। अब जब सॉइल होता है तो सबसे पहले हम लोग सॉइल का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब सॉइल का डायग्राम बन गया है यहाँ पे, तो ये सॉइल के डायग्राम में क्या करेंगे, ठीक है। जबकि अभी मैंने आपको वो बताया, आपको अभी मैंने स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको अभी इसमें दिखाया। अगर आप इसमें देखेंगे, स्क्रीन जब हम लोग शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले हमने कौन सा डायग्राम दिखाया है। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है दिस इज योर सॉइल एंड दिस इज योर कोहेजन का, ये जो है ये आपका कोहेजन का डायग्राम है। जब दोनों चीजें हट जाती है तब जा करके व्हाट विल हैपन, सी का डायग्राम बनता है, ठीक है। तो हियर व्हाट विल हैपन नाउ, विल सी दैट कि ये जो कोलेजन का डायग्राम है ये माइनस करना है। पहले के इसमें हमने क्या किया था, पहले हमने गैमा और आपका सरचार्ज लोडिंग को ऐड किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन पूरी अलग है। यहाँ पे कंडीशन क्यों अलग है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा कोहेजन है वो आपको नेग्लेक्ट करना है। वो कोहेजन आपके सॉइल पार्टिकल्स जो है वो पूरी तरीके से उनके अंदर की जो बॉन्डिंग है वो निकल चुकी है और इसकी वजह से आपको कोहेजन जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में व्हाट विल हैपन, ये आपको डायग्राम यहाँ पे मिलेगा। क्लियर हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये दोनों डायग्राम को जब हम कंसीडर करते हैं तो हमको यहाँ पे ऊपर में 2c माइनस 5 मिलता है √2 के, और यहाँ पे हमको मिलता है गैमा h के ए माइनस 2c √के ए। 2c √के ए दोनों तरफ है, ठीक है। इसलिए आपका डायग्राम जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि इसे किस तरीके से कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व करें। Let me take a whiteboard so that I will be able to explain with you little bit clearly. So here I will try to clear all drawings, ठीक है। अब all drawings clear करने के बाद देखिए ये आपका हाइट बन गया है, ये आपका गैमा है, ये आपका सी है और ये आपका फाई है। जब हम दोनों तरफ की लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो हम पहले गैमा का डायग्राम बना लिए हैं। तो यहाँ पे के ए गैमा इंटू एच आ गया है, ठीक है। अब हम कोहेजन माइनस करेंगे, कोहेजन थ्रू आउट ईयर हाइट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के आपका पूरा सी है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका कोहेजन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका कोहेजन है वो क्या है, 2c √के ए, ठीक है। तो 2c √के ए होने के कारण आपको अलग से एक डायग्राम यहाँ पे मिलेगा। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है। तो 1 - 2 करेंगे, तो 1 - 2 करने के लिए तो यहाँ पे आपका एक लाइन बन गई 1 - 2, तो यहाँ पे 0 है तो 0 - 2 c √k है, तो माइनस साइन है, तो माइनस है तो डायग्राम कौन से साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो आपका ये बन गया 2c - k।
और यहाँ पे नीचे में क्या है, के ए गैमा इंटू एच, और ये क्या है 2c अंडर रूट के ए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका -2c अंडर रूट के ए है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव डायग्राम बन जाएगा, और ये आपका जो है ये बन जाएगा आपका ZC। ZC इज द डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ, Z इज डेप्थ एंड C इज फॉर क्रिटिकल। तो ये जो आपका एरिया है ये रहेगा, ठीक है। तो दैट विल बी के ए गैमा एच -2c अंडर रूट के ए, ठीक है। तो ये इतना जो एरिया है आपका ये रहेगा, ठीक है। So this is how you have to solve in the numericals also. I hope you have understood up to this. So again we'll go in the presentation. See, it is little bit difficult, but if you understand then it is very easy, ठीक है। तो क्रिटिकल डेप्थ हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो क्रिटिकल डेप्थ निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे गामा ZC के ए, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे में दिया गया है के ए गैमा ZC इन -2c के इक्वल्स टू 0। यहाँ पे z जो है वो क्या हो गया है, इक्वल्स टू 0। तो ZC कैलकुलेशंस के लिए 2c अंडर रूट के ए गैमा इंटू के ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है आपकी, अब इसे अब जब आप सॉल्व करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट के ए से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो दोनों जगह अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2c गैमा अपॉन अंडर रूट के ए, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन, ये आपकी नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन देयर एग्जिस्ट अ सरचार्ज, ठीक है। अब व्हेन सरचार्ज एग्जिस्ट करेगा तो आपको 3 डायग्राम मिलेंगे। तो 3 डायग्राम में आपको क्या कंसीडर करना है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं पूरी ड्राइंग, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपकी वॉल है, और यहाँ पे आपका सरचार्ज लोडिंग आ गया है Q, फिर यहाँ पे गैमा भी है, फिर यहाँ पे C भी है, फिर यहाँ पे 5 भी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि विल सी द स्लाइड कि इसमें किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो ये आपकी स्लाइड है, आप इसे अच्छे से देखिए। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सरचार्ज लोडिंग है, फिर यहाँ पे आपको गैमा भी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपको C और 5 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या कंसीडर करना है, अब डायग्राम इसका कैसे बनेगा, इक्वल टू। अब जब हम इक्वल टू करेंगे तो सबसे पहले आपका सरचार्ज का डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सरचार्ज का डायग्राम हमारा कैसे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है Q इंटू के ए। फिर आपका जो डायग्राम है आपका सॉइल का डायग्राम है। तो आपका सॉइल का डायग्राम पहले ऊपर में H में 0 रहता है और नीचे में मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, और लास्टली आपका जो कोहेजन होता है वो भी आपके सरचार्ज जैसा रहता है, जो कि 2c अंडर रूट के ए होता है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन जाता है, और इसके बाद आप कैलकुलेट करते हो के ए की वैल्यू, ठीक है। तो के ए की वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी, आप पूरे कैलकुलेशंस करेंगे तो, ठीक है। So next is generalized case for active earth pressure. So we'll study this in next class. It is little bit
difficult since the PA value is inclined on the surface of your retaining walls. So we'll study later on. So this is how today's class ends. If you have any questions, you can call me anytime. Thank you so much.